آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ سیکریٹریٹ میں پہلی مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کے سلسلے میں جائزہ اجلاس، چیف منسٹر ریونت ریڈی اور اکبر الدین اویسی شریک۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے بھائی کو بھی ہائیڈرا کی نوٹس، اندرون 1 ماہ غیر مجاز تعمیرات منہدم کرنے کا انتباہ۔ زائد از 5 ماہ بعد KCR کی کویتا سے ملاقات، سابق چیف منسٹر نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اور حیدرآباد میں جنونی نوجوان کے ہاتھوں لڑکی کا قتل، بیچ بچاؤ کی کوشش میں دیگر لڑکیاں بھی زخمی، انتہائی اقدام کے بعد قاتل کا اقدام خودکشی۔ اسرائیل نے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کی رہائش گاہ خیمہ کیمپ کو نشانہ بنایا، جس میں کم از کم 5 ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے۔ ان میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 68 فلسطینی ہلاک اور 77 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ زمین پر موجود ہماری ٹیمیں آج صبح سے اب تک 28 افراد کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ ایران کے صدر نے شمالی شہر لاہجان میں ایک مدعی علیہ کی حراست میں موت کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے جمعرات کو یہ بات بتائی۔ حکومت کے تعلقات عامہ کے سربراہ الیاس حضرتی نے کہا کہ اس المناک واقعے کے بعد صدر نے وزیر داخلہ کو حکم دیا ہے کہ اس واقعے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دیں اور اس کے نتائج جلد از جلد کابینہ کو رپورٹ کریں۔ اس مقدمے کے سلسلے میں عدلیہ کی طرف سے 5 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں جیل سے رہائی کے بعد BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا نے 5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد جمعرات کو اپنے والد اور سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی۔ باپ اور بیٹی کی ملاقات کافی جذباتی تھی، جہاں چندر شیکھر راؤ نے بیٹی کو کافی دیر تک سینے سے لگا لیا۔ 15 مارچ کو ED کے عہدیداروں نے حیدرآباد میں کویتا سے پوچھ تاچھ کے بعد انہیں گرفتار کرتے ہوئے دہلی منتقل کر دیا تھا اور دہلی میں تقریباً 10 دن تک پوچھ تاچھ کی گئی اور 26 مارچ کو انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ پاکستان کی زیر قیادت وشاکھاپٹنم جاسوس کیس میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے چہارشنبے کو ہندوستان بھر کے 7 ریاستوں میں متعدد مقامات پر دھاوے کیے۔ پاکستانی ISIS کے جاسوس ریکٹ کے ذریعے خفیہ دفاعی معلومات کے افشاء سے متعلق معاملے میں گجرات، کرناٹک، کیرلا، تلنگانہ، اتر پردیش، بہار اور ہریانہ میں 16 مقامات پر تلاشی لی گئی۔ NIA کی ٹیموں کے ذریعے تلاشی لینے والے احاطے کا تعلق مشتبہ افراد سے تھا، جنہوں نے ہندوستان میں جاسوسی کی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے پاکستان سے رقم حاصل کی تھی۔ NIA کے ذریعے کی گئی تلاشی مہم کے دوران 22 موبائل فونز اور بہت سے حساس دستاویزات ضبط کیے گئے۔ ریاست آسام میں مسلمانوں کی شادی اور طلاق سے متعلق قدیم قانون کو غیر فعال کرنے والا بل اسمبلی میں منظور کر لیا گیا۔ ریاستی وزیر جوگن موہن نے 22 اگست کو اسمبلی میں بل پیش کیا تھا، جس میں آسام میں مسلمانوں کی شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ 1935 اور آسام منسوخی آرڈیننس 2024 کو رد کرنے کی بات شامل تھی۔ آج یہ بل اسمبلی میں پاس ہو گیا۔ بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ ہمارا مقصد صرف نابالغوں کی شادی کو ختم کرنا نہیں، بلکہ قاضی نظام سے چھٹکارا پانا بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کی شادی اور طلاق کے لیشن کو سرکاری نظام کے تحت لانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن نے اس بل کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور کہا کہ یہ بل مسلمانوں کے ساتھ تفریق کرنے والا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی اور دیگر سیاسی و مذہبی قائدین کے ساتھ مل کر سیکریٹریٹ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ شاید ریاست کی تاریخ کا پہلا موقع ہے جہاں ایک چیف منسٹر نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ اس جائزہ اجلاس میں ریاستی وزراء سدھیر بابو، پونم پربھاکر، ارکان پارلیمنٹ انل کمار یادو، حکومتی مشیر محمد علی شبیر کے علاوہ حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری، DGP، سینئر عہدیداران، وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کے علاوہ دیگر مسلم نمائندے موجود تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں گنیش اتسو کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء سریدھر بابو، P. سرینواس ریڈی، پونم پربھاکر، T. ناگیشور راؤ،
दामोदर राजनरसिम्हा सीताक्का, अरकान पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी, हुकूमती मुशीर, जीएचएमसी के मेयर, डिप्टी मेयर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के अलावा दीगर ओहदेदारान शामिल थे। गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएशन तलबा ने 7 माह से वाजिबुल अदा स्टाइफंड की रकम के मुतालबे पर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल की वजह से शोबे आउट पेंशन का काम मुअत्तल रहा। निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल के यूनानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद जुनेद ने कहा कि गुज़श्ता 7 माह से स्टाइफंड वाजिबुल अदा है। पहले हर 3 माह में क्रेडिट किया जाता था, ताहम इस बार ये फ़र्क बहुत तवील हो गया है। स्टाइफंड एलोपैथी के बराबर था। 2016 में ये 23,000 माहाना था और इसके बाद अब तक यही है। इस साल जनवरी में तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुक्काम को 3 माह के अंदर स्टाइफंड अदा करने की हिदायत दी थी। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद स्टाइफंड अदा नहीं किया जा रहा है। अब निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया है, जो नवंबर के लिए दर्ज किया गया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ गोशों से मौसूल होने वाली इन शिकायत पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया कि बास निचले दर्जे के अहदेदार हैदराबाद में हाइड्रा का नाम लेकर डराते धमकाते हुए बदउनवानियों में मुलविस हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनके इल्म में ये बात आई है कि रेवेन्यू, म्यूनसिपल और इरिगेशन के अहदेदार माजी में और 2-3 साल कबल की गई शिकायतों को बुनियाद बनाकर बाज़ मकामात पर रकम का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने एसीबी और विजिलेंस अहदेदारों को मुतनब्बा किया कि इस तरह की वसूलियों में मुलविस अहदेदारों पर तवज्जो दें। महबूबनगर में बल्दी हुक्काम ने माजी में कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दी गई पट्टा अराजी पर बनाए गए मकानात को मुनहदम कर दिया। हुक्काम ने बगैर किसी इत्तला के आदर्श नगर में इन मकानात को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया। म्यूनसिपल हुक्काम के अहदेदार कल रात देर गए पुलिस की भारी जमीयत के साथ आदर्श नगर पहुंचे और इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी। इस वक्त मकानात में रहने वाले अफराद सो रहे थे। इस कार्रवाई में तकरीबन 75 मकानात को नुकसान पहुंचा। ये इंहदामी कार्रवाई सुबह तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 के नोट बराए वोट केस में चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी केस को तेलंगाना हाई कोर्ट से भोपाल हाई कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त बीआरएस लीडर और साबिक वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी की जानिब से दायर की गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने केस की निगरानी के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर करने का ऐलान किया। हाइड्रा के अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के मकान को नोटिस जारी की है। शहर हैदराबाद के माधापुर के अमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में तिरुपति रेड्डी मुकीम है। अहदेदारों ने इस बात को पाया कि वज़ीर आला के भाई जिस मकान में मुकीम है वो FTL के हुदूद में आता है, इसलिए इनके मकान पर नोटिस चस्पा की गई। दूसरी तरफ कावोरी हिल्स डॉक्टर्स कॉलोनी अमर सोसाइटी को भी नोटिस जारी की गई, जो FTL हुदूद में आते हैं। इन नोटिसों में कहा गया है कि इमारतें गैर मजाज तामीरात हैं। इन नोटिसों में वाज़ेह किया गया है कि अंदरून 1 माह ये गैर मजाज इमारतें मुनहदम कर दी जाएंगी। वो एक मिनिस्टर वो मेरा अकेले के लिए काम नहीं कर रहे, सब लोगों के लिए कर रहे हैं। वो तो उनको करना है, अधिकारी करना है। सीएम क्या करेंगे? क्या कहेंगे सर, ये डेमोलिशन में आप मदद करेंगे अगर बफर जोन में आता है तो? डेमोलिशन तो करना ही पड़ेगा। लीगली कुछ इलीगल काम करा तो लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। तो आप कार्रवाई के लिए रेडी हैं? रेडी है। अगर घर और दूसरे प्रॉपर्टीज भी इस चीज की जब्त में आ रहे हैं और खास करके आपके प्रॉपर्टी को लेकर काफी दिन से चर्चा चल रही है। बीआरएस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, ड्रोन विजुअल्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट विजुअल्स लगा रहे हैं। बीआरएस लोग मेरे को लेके ये सब कॉलोनी वाले को वो तो मुसीबत में पड़ा दिए। जो अगर मैं नहीं है तो इधर तरफ कोई देखने वाला ही नहीं रहता है? ये तो मैं बनाया सो नहीं है, मैं लेआउट नहीं बनाया, मैं इलीगल को नहीं बनाया, मैं परमिशन लेके जो मेरा मालिक था वो बना दिए, मैं घर बीच में खरीदा, मुझे क्या मालूम है? नहीं, आपके जो गवर्नमेंट तोड़ना चाहे तोड़ने दो, जरा टाइम दिए तो सामान लेके बाहर चलता हूँ।
सर जैसे आप कह रहे हैं कि बीआरएस अधिकारियों से मतलब ये पूरे बीआरएस वाले अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ये जो 10 साल उनका गवर्नमेंट में बहुत इलीगल काम चला, वो काम रोकने के लिए वो ऐसा काम चालू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात को नोट बराए वोट केस की समाअत के मौके पर अदालत ने कविता की जमानत के फैसले पर रेवंत के तबसरों का हवाला दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया था कि बीजेपी और बीआरएस के दरमियान तय पाए गए खुफिया माहदे की वजह से कविता को जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी के इस तबसरे पर संजीदगी से नोट लिया। अदालत उज़्मा ने इस्तफसार किया कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर मौजूद शख्स ऐसी बात कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेवंत रेड्डी के रवैये को गलत करार दिया। अदालत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के बयान से लोगों के जहनों में शुकूक पैदा होंगे। तेलंगाना के सिरसिल्ला में पुलिस ने देसी साख्ता बंदूकें तैयार करने वाले एक शख्स और इन बंदूकों को जंगली जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने वाले दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़िले के गंभीराउपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर नामी शख्स देसी साख्ता बंदूकें तैयार करते हुए जंगली जानवर के शिकारियों को फ़रोख्त कर रहा था। पुलिस ने शंकर के घर पर छापा मारा, जहाँ मुख्तलिफ औजारों से बंदूकें बनाता हुआ पकड़ा गया। शहर के गचिबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ एक तांडा में जुनूनी लड़के ने नौजवान लड़की का कत्ल कर दिया और उसके बाद ख़ुदकुशी की कोशिश की। इतलात के मुताबिक 25 साला दीपा तमांग का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से था। वो शहर के नल्लागंडा इलाके में ब्यूटिशियन के तौर पर काम करते हुए गचिबौली गोपनपल्ली तांडा के करीब अपनी साथियों के साथ मुक़ीम थी। करीब में कर्नाटक के बिदर से ताल्लुक़ रखने वाला राकेश भी रहता है। गुज़श्ता चंद दिनों से वो लड़की को मोहब्बत के नाम पर हरासा कर रहा था और शादी के लिए दबाव डाल रहा था। लड़की ने उसकी इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया, जिस पर बरहम नौजवान कल रात लड़की के घर पहुंचा, जहां वो और उसकी साथी लड़कियां मौजूद थीं। नौजवान ने दीपा तमांग पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी होगी। बीच बचाव पर उसने उसकी साथियों को भी निशाना बनाया। इस वाक़े के बाद नौजवान वहाँ से फ़रार हो गया और उसने करीब में इलेक्ट्रिक वायर्स पकड़कर ख़ुदकुशी की कोशिश की। मुकामी अफराद ने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से छानबीन कर रही है। सेक्रेटेरिएट में पहली मरतबा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात के सिलसिले में जायज़े इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी शरीक। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के भाई को भी हाइड्रा की नोटिस। अंदरून 1 माह गैर मजाज तामीरात मुनहदम करने का इंतबाह। ज़ायद 5 माह बाद KCR की कविता से मुलाकात। साबिक चीफ मिनिस्टर ने बेटी को गले लगा लिया। और हैदराबाद में जुनूनी नौजवान के हाथों लड़की का कत्ल। बीच बचाव की कोशिश में दीगर लड़कियां भी जख्मी। इंतहाई इक़दाम के बाद कातिल का अक़दाम खुदकुशी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।